Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 16th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to continue the topic of the corals, which are also known as the rainforest of the tropical ocean. In the previous video, we have discussed about the basics of the corals, different types of coral reefs and the ecological conditions which are required for the survival of the corals. And in this video, we will be talking about the coral bleaching, threats to the corals, importance of the corals and the various steps which are being taken by the Indian government in order to protect the corals. But before that, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. To which family does the animal component of the coral belongs to? What type of relationship is there between the zooxanthellae and the Anthrozoa? And guys, you have to tell me the difference between the fringing, patch and the barrier reef. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous video. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So in the previous video, we discussed about the coral. It is basically the superorganism and जिसमें हमारा animal component भी होता है and plant component भी. ये basically neritic zone में grow करता है जो कि है एक तरह का wetland. उसके बाद हमने बात की थी zooxanthellae, that is the plant component जो कि है एक producer. उसके बाद हमारे एनिमल कंपोनेंट को कोरल पॉलिप बोला जाता है एंड जो बिलोंग करता है एंथ्रोजोआ फैमिली को एंड कलर ऑफ द कोरल्स इज बिकॉज ऑफ द zooxanthellae. देन वी टॉक्ड अबाउट द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन कि आखिर क्यों कोरल्स को बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन बिकॉज दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. Then we talked about the area of India under the corals, that is equals to just 2%. And the largest coral reef of the world is present in Australia, which basically extends up to 2000 kilometers. तो guys ये है coral जिसमें animal component भी है and हमारा plant component भी है. Plant component animal component को खाना देता है तो animal component plant component को protect करता है and इनका different color basically इनकी different state के बारे में बताता है. जैसे कि अगर ये कलरफुल हैं तो मतलब ये बहुत हेल्दी हैं, लेकिन अगर ये वाइट या फिर येलो हो जाते हैं इसका मतलब इन्हें किसी तरह का थ्रेट है. देन वी टॉक्ड अबाउट द फ्रिंजिंग रीफ, मतलब अगर हमारे कोरल्स कोस्टल रीजन के साथ अटैच्ड हैं तो वो फ्रिंजिंग रीफ है. उसके बाद अगर वो एक नैरो वाटर बॉडी के कारण थोड़ा सेपरेट हो गए हैं कोस्टल रीजन से तो उसे हमने बोला था पैच रीफ. उसके बाद अगर बहुत ही वाइड वाटर बॉडी है कोरल और कोस्टल रीजन में तो उसे बैरियर रीफ बोला जाता है. एंड अगर हमारा कोरल हॉर्स शू शेप्ड का है तो उसे एटॉल बोला जाता है. तो गाइस जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये है बेसिकली पैच रीफ की. उसके बाद ये है हमारा हॉर्स शू शेप्ड कोरल, इसका मतलब हमारा है ये एटॉल. उसके बाद ये नीचे वाला है बैरियर रीफ. उसके बाद गाइज ये है फेरोज जिसमें कि बहुत ही सारे एटॉल्स प्रेजेंट हैं जो कि है बेसिकली हॉर्स शू शेप्ड कोरल्स. तो ये है हमारे फेरोज. फर्स्ट इमेज है हमारी पैच रीफ की, उसके बाद है एटॉल एंड उसके बाद है बैरियर रीफ एंड सबसे बड़ा बैरियर रीफ प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया में. तो गाइज उसके बाद हमने बात की थी सबमरीन बेंच, टेम्परेचर, सेलिनिटी, सेडिमेंटेशन, सनलाइट और उसके बाद हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में. So today we are going to discuss about the coral bleaching. आखिर क्या होती है कोरल ब्लीचिंग? गाइज ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी चीज का कलर निकल जाना. तो ऐसे ही अगर हमारा ब्यूटीफुल कलर है जो कोरल्स का वो खत्म हो जाए, किसी वजह से वो व्हाइट या फिर येलो हो जाए तो उसे बोला जाएगा कोरल ब्लीचिंग. इसका मतलब कोरल्स की ब्लीचिंग हो गई है, मतलब उनका कलर कहीं गायब हो गया है. तो गाइस हर एक कलर की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है. अगर हमारे कोरल्स बहुत कलरफुल हैं इसका मतलब वो बहुत ही हेल्दी स्टेट में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर वो वाइट या फिर येलो हो गए हैं इसका मतलब होता है कि उन्हें किसी ना किसी तरह का थ्रेट है एंड इसे ही हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग. एंड गाइस ऐसा भी हो सकता है कि कोरल ब्लीचिंग थोड़े से टाइम के लिए हो सो दैट कोरल्स रिकवर हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लीचिंग परमानेंट हो जाए जिसकी वजह से हमारे कोरल्स डेड हो जाएंगे.
तो गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है वाइट बैंड एंड ब्लैक बैंड डिसीज। जैसा कि हमें पता है कि कोरल्स में कलर की बहुत सिग्निफिकेंस होती है, इसलिए इसकी डिसीज को भी बेसिकली वाइट और ब्लैक बैंड डिसीज ही बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। आखिर क्या रीजंस हैं कोरल ब्लीचिंग के? गाइस हमें पता है कि मैंग्रोव्स तो बहुत हार्श इकोलॉजिकल कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते थे, लेकिन हमारे कोरल्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं एंड हमें पता है कि वो एक बेसिकली 19 से लेकर 22 डिग्रीज तक ही सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो हमारा प्लांट कंपोनेंट एनिमल कंपोनेंट से अलग हो जाएगा। अगर वो दोनों सेपरेट हो गए तो हमारे एनिमल कंपोनेंट को खाना नहीं मिलेगा एंड हमारे प्लांट कंपोनेंट को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी टाइडल करंट आएगा या फिर कोई भी फास्ट ब्लोइंग विंड होगी तो वो एल्गी को अपने साथ ही फ्लो कर लेगी एंड इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। उसके बाद है सैलिनिटी। अगर एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा सैलिनिटी हो जाए, मतलब 30 ppt से ज़्यादा हो जाए, फिर भी ऐसा ही होगा कि प्लांट कंपोनेंट और एनिमल कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो दोनों हैं वो अलग हो गए, उनमें रिलेशनशिप खत्म हो गया एंड एज अ रिजल्ट प्लांट कंपोनेंट भी अलग से सरवाइव नहीं कर पाएगा और एनिमल कंपोनेंट भी नहीं। इससे क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, जो कि बेसिकली हमारी वजह से होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी टॉक्सिक जो वेस्ट था वो हमने ओशियंस और सीज में छोड़ दिया तो उसकी वजह से कोरल्स वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने देखा था वाइट एंड ब्लैक बैंड डिसीज के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे पैथोजेंस के कारण होती है। उसके बाद गाइज आपको पता होगा कि पेट्रोलियम बेसिकली सी या फिर ओशियन के बेड से ही निकाला जाता है। तो अगर बेसिकली वहां पर किसी तरह की लीकेज हो जाए या फिर जो हमारी शिप इसे लेकर जा रही थी उसमें कोई लीकेज हो जाए तो ऑयल हमारे ओशियंस और सीज पर फ्लोट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सन रेज अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी एंड एज अ रिजल्ट हमारा प्लांट कंपोनेंट खाना नहीं बना पाएगा एंड इसकी वजह से वहां पर हो जाएगी कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद अगर हमने वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया है हमारे ओशियंस और सीज में तब भी हो जाएगा। अगर गाइस हमने कोस्टल रीजन्स में कंस्ट्रक्शन कर दी तो इससे क्या होगा कि हैबिटेट लॉस होगा एंड आपको पता है कि अगर हम लोग सिर्फ 1/10 हैबिटेट भी खत्म कर दें किसी स्पीशीज का तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट एरिया बिकम्स एक्सटिंक्ट, मतलब नियरली हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वहां की डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद गाइस पेस्टिसाइड्स भी एक तरह के टॉक्सिक होते हैं, मतलब क्रॉपलैंड से फ्लो होते हुए वो बेसिकली अगर हमारे सीज और ओशंस में आ जाए तो इससे भी बेसिकली क्या होगा, कोरल्स वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे एंड उनकी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। उसके बाद है हमारी रिमूवल ऑफ मैंग्रोव्स। गाइस मैंग्रोव्स ने बेसिकली सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर सॉइल इरोजन नहीं हो रही थी। लेकिन गाइस अगर मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो वहां पर होगी सॉइल इरोजन एंड वो जो सेडिमेंट्स है वो बेसिकली हमारे कोरल के माउथ को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पर जो हमारा कोरल है वो नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, हेंस द कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद है गाइज अगर कोस्टल एरिया पे किसी भी तरह की हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है या फिर अगर टाइडल करंट्स आ जाए तो वो क्या करेंगे कि जो हमारी एल्गी होती है ना गाइज वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही लाइट इन वेट होती है, तो वो टाइडल करंट्स के साथ आसानी से फ्लो हो जाएगी एंड जिसकी वजह से कोरल की डेथ हो जाएगी। तो गाइस हमने हाई और लो टेम्परेचर के बारे में देख लिया है, सैलिनिटी के बारे में देख लिया है। तो गाइस हमने ऑयल स्पिल में देखा था कि कैसे अगर जो हमारा ऑयल है वो सी के फ्लोर पर स्प्रेड करना शुरू करेगा, अपर पार्ट ऑफ द सी पर आ जाएगा तो उससे सन रेज की पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। एंड आपको पता है कि ज़ूज़ैंथली को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, तो अगर उसको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलेगी तो खाना नहीं मिलेगा एनिमल कंपोनेंट को एंड इसकी वजह से उनमें कुछ अनबन हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएंगे एंड इसकी वजह से कोरल हमारा डेड हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओशनिक करंट्स अगर आएंगे वो भी हमारी एल्गी को खुद के साथ फ्लो करवा लेंगे, जिसकी वजह से बेसिकली वहां पर कोरल नहीं रह पाएंगे। टॉक्सिक्स के कारण क्या होगा, अगर सीवरेज का वाटर वहां पर है तो मेराइन पॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर सुनामीज होंगी वो तो ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने वाली हैं हमारे मैंग्रोव्स और उसके बाद हमारे कोरल्स की। तो गाइज अगर सेडिमेंटेशन होगी तो वो बेसिकली हमारे एनिमल कंपोनेंट के माउथ को ब्लॉक कर देंगे।
जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो हमारे प्लांट कंपोनेंट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ना ही सनलाइट। तो हमारा प्लांट कंपोनेंट खाना नहीं बना पाएगा, एनिमल कंपोनेंट को खाना नहीं मिलेगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे एंड वहां पर हो जाएगी हमारी कोरल ब्लीचिंग। तो गाइज अगर सोलर रेडिएशंस नहीं पहुंचेंगी तो प्लांट कंपोनेंट खाना नहीं बनाएगा, एनिमल कंपोनेंट रूठ जाएगा एंड वहां पर कोरल ब्लीचिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे कोरल्स का कलर चला जाएगा। तो इसका मतलब वो वाइट हो जाएंगे या फिर येलो। तो टाइडल करंट्स के कारण क्या होगा, एल्गी सेपरेट हो जाएगी प्लांट कंपोनेंट बेसिकली हमारा एनिमल कंपोनेंट से। मतलब जिस रीजन से भी प्लांट कंपोनेंट और एनिमल कंपोनेंट दूर हो जाएंगे उस केस में कोरल ब्लीचिंग होनी ही है। उसके बाद गाइस हमने बात की थी व्हाइट बैंड एंड ब्लैक बैंड डिसीज के बारे में। तो ये होती है एक पैथोजन से जिसे बोला जाता है एपिजोटिक्स। तो एपिजोटिक्स एक ऐसा पैथोजन है जिसकी वजह से व्हाइट और ब्लैक बैंड डिसीज हमारे कोरल्स में हो जाती है एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। गाइज आपको इसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि एपिजोटिक वो पैथोजन है जिससे व्हाइट और ब्लैक बैंड डिसीज होती है हमारे कोरल्स में। तो गाइज आपको कितने अच्छे से पता चल रहा होगा कि कलर्स की कितनी सिग्निफिकेंस है। इवन इसकी डिसीज को भी किसी कलर से जाना जाता है। इस अगर कोरल ब्लीचिंग हो जाए उसको भी कलर से जाना जाता है एंड अगर हमारे कोरल्स हेल्दी हैं वो भी उसके ब्लू, रेड और ग्रीन कलर से ही पहचाना जाता है। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। मान लो अगर हमारे कोरल्स वाइट हो गए, येलो हो गए, तो उसका मतलब है कि उन्हें किसी तरह का थ्रेट है। तो गाइस दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो थ्रेट बहुत छोटे टाइम के लिए हो या फिर बहुत ही लंबे टाइम के लिए। जैसे कि गाइस अभी क्या है कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में क्या है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग फाइनेंशियली थोड़े अनस्टेबल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही अभी ये लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है हम लोग फाइनेंशियली दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही अगर जो ये थ्रेट है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए है तो कोरल्स बाद में रिकवर कर जाएंगे। मतलब मान लो अगर ऑयल स्पिल हो गया है हमारे सी और ओशियन में एंड सनरेज की पेनिट्रेशन कम हो गई है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये कुछ करे कि ऑयल को हटा दे तो दोबारा से सनरेज हमारे कोरल्स पर पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे कोरल्स दोबारा से रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद गाइस केस 2, जब जो ये थ्रेट है ये बहुत लंबे टाइम के लिए चलता जाए, मान लो कि हमारा जो मेराइन पोल्यूशन है वो अपने पीक पर पहुंच जाए, तो अभी सीज और ओशियंस को साफ करना इतना छोटा काम तो है नहीं, तो ये बहुत टाइम ले लेगा, जिसकी वजह से जो कोरल ब्लीचिंग थी वो एंड अप होगी कोरल्स की डेथ में। मतलब अभी तो उनका व्हाइट और येलो कलर भी नहीं बचने वाला क्योंकि हमारा प्लांट कंपोनेंट खाना ही नहीं बना पा रहा था। एंड गाइस आपको पता है कि जो कोरल पॉलिप है उसे पॉलिप इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा कैल्शियम कंटेंट हो जाता है। तो गाइस जब कोरल की डेथ होगी तो जो ये बेसिकली हमारा कोरल पॉलिप है ये है जो हमारे सी बेड पर आ जाएंगे। एंड गाइस आपको पता है कि कैल्शियम की वजह से हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, तो ये बेसिकली हमारे सी बेड पर आएंगे, वहां पर रॉक्स की फॉर्मेशन करेंगे एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सी में रिलीज हो जाएंगे, जिसे बेसिकली यूज करके और भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमारी जो इकोसिस्टम में है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो ये सारे के सारे कोरल्स हैं इनकी डेड बॉडीज हैं उनमें कैल्शियम कंटेंट होगा एंड ये बेसिकली हमारे सी बेड पर आ जाएंगी। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरल्स। गाइस जब भी हम लोग किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें पढ़नी चाहिए, एक तो वो चीज है क्या, दूसरी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड गाइस अगर इम्पोर्टेंस होगी तो उन्हें बचाना भी जरूरी होगा, तो एट लास्ट आपको वो तो पढ़ना ही है। तो गाइस जो सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये बहुत ही लार्ज बायोमास होता है, क्योंकि इसमें एनिमल भी होता है एंड प्लांट भी होता है। एंड हमने देखा था कि बायोमास इज बेसिकली द वेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से गाइस क्या होने वाला है कि इनकी बॉडीज हैवी हो जाएंगी एंड अगर कोई दूसरी स्पीशीज इन्हें खाएगा तो उनमें एनर्जी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इनका बायोमास है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद गाइस क्या है कि जैसे ये सबमरीन बेंच पर होते हैं तो क्या होगा, अगर किसी भी लैंड पर कुछ ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होती,
क्योंकि गाइस वो स्पीशीज बेसिकली सॉइल को होल्ड करके रखेगी। इसका मतलब यहाँ पर भी सबमरीन बेंच पे सॉइल इरोजन नहीं होगी। तो पहला क्या था, बायोमास बहुत ज़्यादा है, एंड दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगी। एंड गाइज हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे लिक्विफाई करके उसे बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ओशियंस में। एंड ओशियंस में जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है, प्लांट कंपोनेंट्स होते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाते हैं एंड उनकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है इंक्रीज। तो बेसिकली जो ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ओशियंस एंड सीज में रिलीज करने वाले हैं, ये हमारे कोरल्स भी यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज में तो डिक्रीज हो ही जाएगा, मतलब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं हो पाएगा। तो गाइस उसके बाद है कि इसमें एल्गी प्रेजेंट होती है एंड एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन। तो अगर हम लोग वो कोरल्स की जो एल्गी है उसे खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है। एंड गाइस इवन जो इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग प्रोटीन शेक बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस ये है कि जो हमारे कोरल पॉलिप होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उसे बेसिकली कैल्शियम की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एंड गाइज ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं, प्लांट कंपोनेंट है, तो वो बेसिकली ऑक्सीजन रिलीज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। तो और गाइज इससे क्या होगा कि हमारे सीज और ओशंस बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे, क्योंकि कोरल्स का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर्स होते हैं विच बेसिकली एनहांस द ब्यूटी ऑफ द सीज एंड द ओशंस। उसके बाद गाइस कोरल पॉलिप में कैल्शियम है एंड आपको पता है कि हमारी बोन्स में भी कैल्शियम होता है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी फ्रैक्चर हो जाए तो आज के टाइम में इस कोरल पॉलिप का कैल्शियम लिया जाता है एंड इसे बेसिकली आपकी बोन्स में डालकर फ्रैक्चर को रिपेयर भी किया जाता है। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर गाइज, ये बहुत ही करंट चीज़ है कि जो हमारा गुजरात वाला एरिया है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया है, वहाँ पर एक एक्सोटिक स्पीशीज आ गई है जिसका नाम है ब्रांच कोरल पाइप, या फिर हम लोग इन्हें स्नोफ्लेक कोरल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आए हैं हमारे हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड से। तो गाइस एक्सोटिक स्पीशीज बेसिकली उन्हें बोला जाता है जो कि बेसिकली यहाँ के नहीं हैं, मतलब वो कहीं दूर से आए हैं। तो गाइस इनकी वजह से क्या हुआ, स्नोफ्लेक कोरल्स ने हमारे रिसोर्सेज को यूज करना शुरू किया जो कि हमारे नेटिव कोरल्स को यूज करने चाहिए थे, लेकिन जैसे कि अभी हमारे नेटिव कोरल्स इन्हें यूज नहीं कर पा रहे एंड स्नोफ्लेक कोरल्स इन्हें यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे स्नोफ्लेक कोरल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नेटिव कोरल्स हैं जो वहां पर कम हो गए हैं हमारे गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले एरिया में। तो गाइज बेसिकली ये है हमारे स्नोफ्लेक कोरल्स। तो गाइज जब हम लोग एक जगह पर रहना शुरू होते हैं तो हमें वहाँ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है एंड कोई ना कोई हमारा दुश्मन भी वहाँ पर बन ही जाता है। लेकिन गाइज लेट्स इमेजिन अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप यूएसए गए, तो आपको लगता है कि साथ के साथ आपका कोई दुश्मन बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही जो हमारे स्नोफ्लेक कोरल्स हैं ये आए हैं हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड से, तो बेसिकली इनका कोई भी दुश्मन नहीं है यहाँ पर। तो ये बेसिकली बहुत आसानी से यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेटिव कोरल्स यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे एंड जो हमारे नेटिव कोरल्स है वो तो खत्म हो रहे हैं एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है स्नोफ्लेक कोरल्स की। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्नोफ्लेक कोरल्स आए हैं हमारे हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ये हैं बेसिकली एक्सोटिक कोरल्स एंड इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्रांच कोरल पाइप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द कोरल्स। गाइस हमने पढ़ा है कि कितने ज़रूरी हैं कोरल्स, इनमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, तो बेसिकली इन्हें प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए हैं जिनको यूज़ करके कोरल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले तो है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे बेसिकली हमने मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने में भी यूज़ किया था। तो गाइस इसमें बेसिकली क्या है कि ये बोलते हैं कि आप कोस्टल एरियाज में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन ना करो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट खत्म कर देते हो तो वो स्पीशीज भी खत्म हो जाती हैं। इवन अगर आप किसी भी स्पीशीज का 1/10 हैबिटेट भी खत्म कर दो तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज गेट डिस्ट्रॉयड।
तो बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है एनी कंस्ट्रक्शन ऑन दी कोस्टल एरियाज। उसके बाद है हमारा ग्रीन कोस्ट प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली क्या है कि आप कोरल्स को ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। अभी कोरल्स की कलेक्शन क्यों होती है? प्रोटीन के लिए, दूसरा उसके कैल्शियम के लिए, क्योंकि अभी तो ये फ्रैक्चर रिकवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ प्रोहिबिट की जाती है कि जो भी आप मेराइन चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पर। इवन गाइज आप ये है कि कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे एंड अगर किसी भी तरह की अंडर वाटर ब्लास्टिंग है वो भी नहीं की जाती इस एक्ट के अंदर। उसके बाद गाइज हमारा आता है नेक्स्ट मैरीटाइम प्रोटेक्शन। तो गाइज आपको पता ही है कि मैरीटाइम में हमारे कोस्टल एरियाज आएंगे, मतलब कि जो भी कोस्टल एरियाज पर बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इससे गाइज बेसिकली क्या है, ये बेसिकली चलता है हमारे वेस्ट बंगाल, गुजरात और हमारे आइलैंड्स वाले रास्ते में, क्योंकि वहीं पर तो है हमारी पूरी की पूरी मैराइन बायोडाइवर्सिटी। तो ये बेसिकली हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, उन्हें बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कि जो भी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसे किसी भी तरह का हार्म ना हो। क्योंकि अगर किसी भी जगह की हम लोग हैबिटेट लॉस कर दें एंड वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा हिल जाता है। एंड इवन कोरल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है, प्रोटीन मिलता है एंड कैल्शियम मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कोरल्स को कंजर्व करना एंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अपने इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें संभाल कर रखना हमारी ड्यूटी है। सो गाइज, इफ़ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.